السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خاص خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ حیدرآباد میں شدید بارش کے باعث عنبرپیٹ اور مشیرآباد اسمبلی حلقوں کے کئی نشیبی علاقے زیرآب آ گئے۔ موسیٰ ندی مسرمباغ پل کے اوپر سے بہہ رہی اور اس صورتحال کے پیش نظر کسی بھی قسم کے حادثے سے بچنے کے لیے GHMC ٹریفک پولیس اور ریونیو حکام نے احتیاطی تدابیر کے طور پر گاڑیوں کی آمد و رفت روک دی ہے۔ گزشتہ ماہ ہونے والی شدید بارش کے دوران موسیٰ ندی میں موجود گھاس یا رکاوٹوں کو ہٹا دیا گیا تھا، لیکن حالیہ شدید بارش کے باعث یہ رکاوٹیں دوبارہ پیدا ہو گئی، جس سے سیلابی پانی کے بہاؤ میں شدید رکاوٹ پیدا ہو رہی۔ مسرمباغ پل کو بند کر دیا گیا اور ٹریفک گول ناکہ پل کی جانب موڑ دیا گیا، جس کی وجہ سے گاڑی سواروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ شخصیت کے ساتھ کرو وفا، آ جاؤ صفا۔ صفا گارمنٹس لایا ہے دھماکے دار ویڈنگ سیزن آفر، جہاں ہر لباس میں ہے شان اور انداز۔ ریڈی میڈ شیروانی، ریڈی میڈ سوٹ، ریڈی میڈ بلیزر اور ریڈی میڈ انڈو ویسٹرن کی خریداری پر پائیے 30% تک کا زبردست ڈسکاؤنٹ۔ اسٹیچنگ کے لیے ٹینشن چھوڑو، شیروانی، جودھ پوری اور بلیزر کی اسٹیچنگ صرف 1499 روپے میں، 2 پیس سوٹ کی اسٹیچنگ صرف 1999 میں، 3 پیس سوٹ کی اسٹیچنگ صرف 2999 میں۔ یہ ہے اصلی کلاسی ڈیل۔ ہر ڈریس کی کلوتھنگ فیبرک کی خریداری پر بھی پائیے 20% تک کا ڈسکاؤنٹ۔ ریڈی میڈ پلین کرتا سٹارٹنگ فرام جسٹ ₹399، ڈیزائنر ریڈی میڈ کرتا سٹارٹنگ فرام جسٹ ₹799۔ کرتا پائجامہ اور پٹھانی کا فیبرک خریدنے پر اسٹیچنگ بالکل فری، اور بچوں کے لیے کرتا، پٹھانی، توپ اور شیروانی پر 25% تک کا ڈسکاؤنٹ۔ شادی ہو یا کوئی خاص موقع، صفا گارمنٹس کے ساتھ بناؤ سب سے خاص۔ یاد رکھیے، شخصیت کے ساتھ کرو وفا، آ جاؤ صفا۔ صفا گارمنٹس، ٹوری چوکی ایکس روڈ، حیدرآباد۔ صدر تلنگانہ جاگرتی کلواکنٹلا کویتا اپنے آبائی گاؤں چنتامڈکا ضلع سدی پیٹ میں 21 ستمبر کو بدکما پروگرام میں حصہ لے رہی۔ اس موقع پر مقامی عوام کے علاوہ تلنگانہ جاگرتی کے کارکنان بڑی تعداد میں شریک رہے۔ واضح ہے کہ چنتامڈکا کے عوام نے حال ہی میں کویتا سے ملاقات کی تھی اور انہیں بدکما تقریب میں شرکت کے لیے مدعو کیا تھا۔ کویتا 22 ستمبر کو حیدرآباد میں دفتر تلنگانہ جاگرتی میں منعقدہ بدکما تقریب میں شرکت کریں گے، جبکہ 23 ستمبر کو وہ ضلع منچریال کا دورہ کریں گے اور سری رام پور میں مقامی خواتین کے ساتھ بدکما کھیلیں گی۔ 24 ستمبر کو ضلع سدی پیٹ کے ونگل مندل مندر میں خصوصی پوجا کریں گے اور بدکما تہوار کی روایت کو آگے بڑھائیں گے۔ صدر تلنگانہ جاگرتی 25 ستمبر کو ہریانہ میں سابق نائب وزیر اعظم دیوی لال کی 112ویں جینتی تقریب میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کریں گی۔ بعد ازاں وہ 26 تا 28 ستمبر تلنگانہ کے ثقافتی نمائندہ کے طور پر بیرون ممالک میں مختلف بدکما پروگرامز میں شرکت کریں گے۔ صدر تلنگانہ جاگرتی 26 ستمبر کو قطر، 27 ستمبر کو مالٹا اور 28 ستمبر کو لندن میں بدکما پروگرامز میں حصہ لیں گی۔ کہ کویتا کے مصروف ترین پروگرامز نہ صرف ریاست بلکہ بیرون ممالک میں بھی تلنگانہ کی تہذیب و ثقافت کو اجاگر کرنے اور بدکما جیسے تہوار کو عالمی سطح پر متعارف کرانے کی ایک بڑی کوشش ہے۔ جوبلی ہلز اسمبلی حلقے کے علاقوں میں قبرستان کے لیے زمین الاٹمنٹ کا مطالبہ، مقامی عوام کی حیدرآباد کلکٹر کو یادداشت۔ حیدرآباد کے جوبلی ہلز اسمبلی حلقے کے علاقے بورا بنڈا اور اس کے اطراف کے علاقوں میں قبرستان کی عدم موجودگی پر مقامی عوام نے ضلع کلکٹر حیدرآباد کو ایک یادداشت پیش کی، جس میں فوری طور پر قبرستان کے لیے زمین الاٹ کرنے کا مطالبہ کیا۔ اس موقع پر BRS پارٹی کے MLC داسجو شرون، اقلیتی رہنما شیخ عبداللہ سہیل سمیت دیگر مقامی قائدین بھی موجود تھے، جنہوں نے عوامی مطالبے کی بھرپور حمایت کی۔ مقامی عوام نے حکومت تلنگانہ سے پرزور اپیل کی ہے کہ یوسف گڑھ گاؤں خیرتآباد منڈل میں واقع خالی سرکاری اراضی ہے اور جو پیلی درگاہ کے قریب واقع ہے اور اس کے 2 ایکڑ 16 گنٹے رقبے کو مسلمانوں کے قبرستان کے لیے الاٹ کیا جائے۔ عوام نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ پولیس کی جانب سے قبرستان کے مطالبے پر پرامن احتجاج کرنے والوں کے خلاف جو سوموٹو مقدمہ درج کیے گئے انہیں فوری طور پر واپس لیا جائے۔ مقامی لوگوں کا کہنا تھا کہ جب تک قبرستان کے لیے زمین الاٹ نہیں کی جاتی ان کا احتجاج پرامن طور پر جاری رہے گا۔ کانگریس والے ہیں اور ویسے ہی TRS والے ہیں، MIM والے ہیں، جو بھی ہے مسلمان کوئی بھی ہو، آج وہاں پر جو خاموشی سے پروٹیسٹ کر رہا 2 ایکڑ 16 گھنٹے دیتے ہوئے جو لوگوں کے اوپر جو خدیر بھائی اور جو بھی لوگ کے اوپر جو کیسز ہوئے تو وہ امیڈیٹ ہٹانا، نہیں تو اس کا ریزلٹ آپ انشاءاللہ یہ کانگریس گورنمنٹ یہ الیکشن میں دیکھ لیں گے۔ تھینک یو۔
रेवंत रेड्डी कांग्रेस के नहीं बीजेपी के वजीर आला हैं। केटीआर का रेवंत रेड्डी पर हमला। बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट और सीनियर रहनुमा केटी रामाराव ने मौजूदा तेलंगाना हुकूमत और वजीर आला रेवंत रेड्डी पर शदीद तनकीद की। केटीआर ने कहा है कि रेवंत रेड्डी बज़ाहिर कांग्रेस के वजीर आला हैं, लेकिन दर हकीकत वो बीजेपी के एजेंडे पर काम कर रहे। केटीआर ने कहा है कि अगरचे बीजेपी इस वक्त मुल्क की 20 से ज्यादा रियासतों में हुकूमत चला रही, मगर उनमें से किसी भी रियासत ने नए वक्फ कानून पर अमल दरामद नहीं किया। उन्होंने निशानदेही की कि तेलंगाना मुल्क की पहली रियासत है जहां इस नए वक्फ कानून पर अमल शुरू हुआ है, जो मुसलमानों के मफादात के खिलाफ समझा जा रहा। उन्होंने मजीद कहा है कि बीआरएस ने पार्लियामेंट में इस नए वक्फ बिल की मुखालिफत करते हुए इसके खिलाफ वोट दिया था, मगर तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत ने बगैर किसी मज़ाहिमत के इस पर अमल दरामद शुरू कर दिया। तेलंगाना समझे आप, 28 रियासतों में 3 जगह कांग्रेस का हुकूमत है, बाकी करीब करीब 20 जगह बीजेपी का हुकूमत है। 20 लोगों को कोई जल्दी नहीं थी, बीजेपी वालों को, बीजेपी चीफ मिनिस्टरों को। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब को काफी जल्दी थी कि कुछ भी करके इसको जल्द से जल्द लागू करना है, अमल करना है। कहां की रही था ये, काय को कर रहे थे आप? जबकि कोई बीजेपी चीफ मिनिस्टर नहीं कर रहा, कोई और कांग्रेस चीफ मिनिस्टर नहीं कर रहा, काय को आप करें? सवाल करो। कांग्रेस का जो कैंडिडेट आएगा कल गलियों में, कांग्रेस को जो मिनिस्टर आज घूम रहे गलियों में, जब गोपन्ना थे कोई नहीं दिख रहे थे यहाँ पे, मागंटी गोपीनाथ साहब जब थे कोई नहीं आ रहे थे कांग्रेस लीडर। आज बड़े बड़े घूम रहे, इधर लीडर उधर लीडर, टोपी पहन के, टोपी करके, आपको टोपी लगाने के लिए घूम रहे हो लोग, और कुछ नहीं। याद करो, पूछो उनसे कि क्या जल्दी थी आपको कि वक्फ बिल आप पहले लागू करें। अब तो सुप्रीम कोर्ट में स्टे आ गया, वो अलग बात है, पर स्टे आने से पहले ही अमल करने वाला चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी है। इस वास्ते मैं बोल रहा हूं भाइयों, कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर नहीं है, नामपल्ली हलके में एआईएमआईएम नामपल्ली के एमएलए माजिद हुसैन ने जेएचएमसी जोनल कमिश्नर खैरताबाद अनुराग जयंती और महकमे वाटर वर्क्स के ओहदेदारों के साथ अहमदनगर डिवीजन, विजयनगर कॉलोनी डिवीजन और मल्लेपल्ली डिवीजन के अंदर नाला, सड़कों और जारी तरक्याती प्रोजेक्टों का दौरा करते हुए मुआयना किया। इस मौके पर उनके साथ दीगर मजलिसी कारकुन भी मौजूद रहे। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज सुबह से जेडसी जोनल कमिश्नर खैरताबाद के साथ मैं, मेरे साथ हमारे साथी कॉर्पोरेटर हजरात कासिम भाई साहब, जफर साहब, मूसा साहब, सफा साहब, आरिफ साहब और तमाम अहदेदारों के साथ हमने नामपल्ली का तफसीली दौरा किया, जिसकी शुरुआत सैयद नगर से हुई। और मेन ये मकसद ये इस दौरे का ख़ास तौर से पूरे नालों की तोसी का था और स्टैग्नेशन पॉइंट्स को हटाने का था परमानेंटली तौर पर, और उसके लिए क्या क्या इक़दाम लेना चाहिए और किस किस्म से SNDP को इस्तेमाल करते हुए नाला को वाइडनिंग करते हुए नामपल्ली में जो तकलीफात जो पेश आ रहे हैं उसको दूर करने की किस तरीके से हमें कोशिश करनी चाहिए, उसके ऊपर एक तफसीली दौरा हुआ। इंशाअल्लाह ताला ये नाले की तोसी जिस तरीके से हम अब आगे बढ़ाएंगे और इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि तकरीबन जो 1, 2, 3 स्टैग्नेशन पॉइंट्स नामपल्ली हल्के में उसको भी कम्प्लीटली तौर पे रिमूव कर सके। उसके साथ साथ लेबर अड्डे की रोड, यहाँ पे जयभूषण की रोड और ग्राउंड के पीछे की रोड। अमेरिका में पुलिस फायरिंग से महबूब नगर के नौजवान निजामुद्दीन हलाक। केस में आया पुलिस का बयान। अमेरिका में पुलिस की फायरिंग के नतीजे में हलाक होने वाले तेलंगाना के जिले महबूब नगर से ताल्लुक रखने वाले नौजवान निजामुद्दीन के केस में पुलिस का बयान सामने आया। पुलिस के मुताबिक निजामुद्दीन ने अपने एक करीबी दोस्त पर चाकू से 4 मरतबा हमला किया। एक और दोस्त ने फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी, जिसके बाद अहलकार मौके पर वारदात पर पहुंचे। पुलिस का कहना है कि जब वो जाए वाक़े पर पहुंचे तो निजामुद्दीन जख्मी दोस्त के ऊपर बैठकर मुसलसल चाकू से वार कर रहा था। पुलिस ने कई बार जुबानी इंतबाह दिया, लेकिन निजामुद्दीन बाज न आया। सूरत हाल पर काबू पाने के लिए पुलिस ने उस पर 4 राउंड फायरिंग की। निजामुद्दीन को फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया गया, जहां वो दौरान इलाज दम तोड़ गया। दूसरी जानिब जिस दोस्त पर हमला किया गया था उसके हाथ, सीना, फेफड़े और पेट पर जख्म आए, मगर वो अब जेर इलाज है और खतरे से बाहर बताया जा रहा। पुलिस ने यह भी इंकशाफ किया कि ये पहला मौका नहीं था, बल्कि इससे कबल भी दोनों के दरमियान AC एयर कंडीशनर के मामले पर झगड़ा हो चुका था। Good morning. On Wednesday morning, Santa Clara PD officers responded to a disturbance call on the north side of Santa Clara. The call resulted in one of our officers shooting an assailant who was actively attacking another person with a knife. Based on our preliminary investigation, we believe the officer's actions prevented further harm and clearly saved at least one life, and possibly others.
While we are early in the ongoing investigation, I want to share with you the following facts as they are known at this time. On Wednesday morning at approximately 6:18 a.m., officers responded to a 911 call from a residence on the 1800 block of Eisenhower Drive involving a disturbance between two roommates. As officers were responding to the location, they received information that the situation had escalated, and the suspect was now stabbing the victim. The first arriving officer ran to the front door and identified themselves. The officer could hear a loud commotion inside and decisively made a crisis entry into the residence by kicking open the locked front door. The officer quickly followed the sounds toward the hallway where the attack was taking place. The officer saw 4 people in the hallway, including the suspect who was straddling the victim, effectively pinning the victim to the ground. I'll direct your attention to the still image from the involved officer's body-worn camera. You see the suspect is positioned on top of the victim and the victim's on the bottom. You will notice one roommate at the back end of the hallway, and off the screen we know that the reporting party was standing in this room with the open door to the left. The officer attempted to de-escalate the situation with verbal commands, but the suspect ignored the commands and raised their arm holding the knife to a striking position above the victim. When the officer saw the suspect's hand holding the knife come down towards the victim, the officer shot 4 times, striking the suspect with all 4 of the shots. This is another still image from the body camera after the shooting, and you'll notice the knife visible in the hallway. The 2 other occupants were safe during the incident and were directed outside to safety with the victim, while the officer, who was still the only आंध्र प्रदेश की कर्नूल जिले की जरी मंडी इन दिनों पूरे मुल्क में मौजूए बहस बनी हुई है। इस साल मुकामी किसानों ने प्याज की इजाफी काश्त की, लेकिन तलब कम होने की वजह से प्याज के किसान सख्त नुकसान से दो चार हैं। किसानों की मदद के लिए हुकूमत ने प्याज की खरीदारी के लिए कम से कम इमदादी कीमत 1200 रुपए फी कुंटल मुकर्रर की। बाज काश्तकारों ने कहा है कि हुकूमत की जानिब से सही वक्त पर प्याज ना खरीदने की वजह से प्याज खराब हो गई, जिसका हमें अंदाजा नहीं था और अब हमें नुकसान उठाना पड़ रहा। उन्होंने कहा है कि बड़ी मकदार में प्याज खराब होने की वजह से कचरे के डंप यार्ड में फेंकी जा रही, क्योंकि यह खरीदी जाने के काबिल नहीं रही। बादजा कर्नूल जरी मंडी के चेयरपर्सन अजबत बी ने तस्दीक की कि खराब प्याज को तल्फ किया जा रहा क्योंकि वो फरोख्त के काबिल नहीं। दूसरी जानिब टीडीपी टाउन सदर हमीद ने अपोजिशन पर इल्जाम लगाया है कि वो हुकूमत के खिलाफ अफवाहें फैला रहे कि प्याज खरीदी नहीं जा रही। उन्होंने कहा है कि लोग इसे मार्केट से ले जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि किसी भी किसान ने अफसरान के पास शिकायत दर्ज नहीं की, लेकिन मीडिया में प्याज की चोरी और कचरे में फेंकने के अलावा दीगर कई अफवाहें फैलाई जा रही। दिल्ली कांग्रेस सदर देवेंद्र यादव ने अपने बयान में कहा है कि दिल्ली में इलेक्शन कमीशन के जरिए वोटरों की खुसूसी गहरी नजरसानी SIR करना बीजेपी की वोट चोरी से मुतल्लिक साजिश को दबाने और गरीबों और झग्गी झोपड़ी वालों और दूसरे शहरों से आए महाजिरों को दिल्ली से खदेड़ने की साजिश है। उन्होंने कहा कि मैं इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहता हूं कि 2002 में दिल्ली की आबादी सिर्फ 1,39,00,000 थी और 2025 में दिल्ली में वोटरों की तादाद 1,55,00,000 है। दिल्ली इलेक्शन कमीशन के पास ऐसा कौन सा फार्मूला है जिससे वो 2002 की वोटर लिस्ट के साथ 2025 की वोटर लिस्ट का मुआवजा करके SIR को अंजाम देंगे। देवेंद्र यादव ने कहा कि कांग्रेस ने दिल्ली को बनाया और बसाया है। बीजेपी दिल्ली सदर वीरेंद्र सचदेवा पहले अपने गिरेबान में झांके, फिर कोई बयानबाजी करे। दिल्ली समेत पूरे मुल्क में वोट चोरी के मामले की माहिर बीजेपी का वोट चोरी का खेल पूरे मुल्क के सामने बेनकाब हो चुका है। टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक और तारीखी लम्हा आया है जब एप्पल ने बिला आखिर अपना नया स्मार्टफोन iPhone 17 मुतारिफ करा दिया। हिंदुस्तान में इस फोन का जुनून इस कदर बढ़ चुका है कि लॉन्च से कई घंटे पहले ही दिल्ली और मुंबई के मुख्तलिफ स्टोर्स के बाहर खरीदारों की लंबी कतारें नजर आई। दिल्ली के साकेत इलाके में वाक़े सेलेक्ट सिटी वॉक मॉल के बाहर दर्जनों लोग दरमियानी रात से ही लाइन में लगते हुए थे और रात के ठीक 12 बजे कतारों की सूरत में ये मनाजिर इस बात की अक्कासी कर रहे थे कि सार्फिन के लिए
ये नया फोन महज एक गैजेट नहीं बल्कि एक स्टेटस सिंबल भी बन चुका है। कई खरीदार अपनी बारी का इंतजार करते हुए फोन लॉन्च होते ही उसे हाथ में लेने की ख्वाहिशमंद दिखाई दिए। इसी तरह मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में वाक़ई एप्पल के ऑफिशियल स्टोर के बाहर भी अलग सुबह से ही लोगों का हुजूम देखने को मिला। रिपोर्टों के मुताबिक कुछ लोग 7 से 8 घंटे से इंतजार कर रहे थे, जबकि कई ऐसे सार्फिन भी मौजूद थे जिन्होंने पहले से फोन की बुकिंग नहीं की थी, लेकिन फिर भी उम्मीद में कतार में लगे रहे कि शायद उन्हें भी नया मॉडल मिल जाए। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वोट चोरी के कुछ नए सबूत पेश करके सियासी गहमा-गहमी शुरू कर दी। कांग्रेस ने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की छोटी छोटी क्लिप सोशल मीडिया पर डालकर अवाम में बेदारी पैदा करना भी शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, वोट चोरी के कुछ तरीकों को वीडियो की शक्ल में पेश भी किया जा रहा ताकि अवाम चीज़ों को आसानी से समझ सकें। इन वीडियोस में इलेक्शन कमीशन के साथ साथ बरसर इख्तिदार तबके को भी हदफ बनाया जा रहा। कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर ऐसे वीडियोस डाली हैं जिसमें कुछ अदाकार अपनी अदाकारी के जरिए बता रहे हैं कि अनजान लोग अपोजिशन तबके के वोटर का नाम हज़फ करने का अमल अंजाम दे रहे हैं। एक वीडियो में दिखाया गया कि खातून मेकअप कर रही, उसके पास एक परेशान शख्स आता है और कहता है, हेलो मैडम, आपने मेरा वोट क्यों काट दिया? खातून जवाब देती है, मैं आपका वोट क्यों काटूंगी, मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ। फिर वो शख्स कहता है, मैडम, लेकिन दिखा रहा है कि आपके नाम से मेरा वोट कटा है। ये सुनकर खातून झंझलाते हुए कहती है, अरे भाई, मुझे नहीं पता आपका वोट कैसे कटा, क्यों कटा, किसने काटा, मुझे सच में नहीं पता आपका वोट कैसे कटा भाई। अब ये शख्स हैरान सवाल उठाता है कि तो मेरा वोट कटा कैसे? फिर वीडियो में एक दीगर शख्स की एंट्री होती है। वो कुर्सी पर बैठा हुआ है और मुस्कुराता हुआ कहता है, ब्रदर इधर, मैंने काटा है आपका वोट। हेलो मैडम, ये आपने मेरा वोट क्यों काट दिया? मैं आपका वोट क्यों काटूंगी? मैं आपको जानती भी नहीं हूँ। मैडम, लेकिन दिखा रहा है ना कि आपके नाम से मेरा वोट कटा है। अरे भाई, मुझे नहीं पता आपका वोट कैसे कटा, क्यों कटा, किसने काटा, मुझे सच में नहीं पता है आपका वोट कैसे कटा भाई। तो मेरा वोट कटा कैसे? ब्रदर इधर, मैंने काटा है आपका वोट। आप कौन भाई साहब? मैं गुल्लू, टैक्सी ड्राइवर। हैं? गुल्लू, पिंटू, बबलू, कुछ भी नाम हो सकता है मेरा। आज के लिए आप मान लीजिए मेरा नाम है अज्ञात कुमार। अज्ञात कुमार, तुमने मेरे नाम से इनका वोट कैसे काट दिया भाई? अरे ये बातें मुझे साझा करनी चाहिए क्या? अजीब आदमी हो यार, एक तो मेरा वोट काट दिया, ऊपर से बता भी नहीं रहे हो कि कैसे वोट काटे हो। यार देखो, ऐसा है, सिस्टम है अपना। आप लोग वोट देते तो विपक्षी पार्टी को, मैंने देने ही नहीं दिया, नाम ही डिलीट कर दिया। इसे कोई खौफ वौफ नहीं है क्या? डर नहीं है तुम्हें? डर अब पता भी है किसका हाथ है मेरे सर पे? नहीं। हाँ तो तुम सस्पेंस में ही रहो। वैसे भी ज्ञानेश भैया तो मेरी डिटेल्स किसी को देंगे नहीं। ज्यादा ही मत करो, पकड़े जाओगे वोट चोर कहीं के। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం
వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్ని వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद. माँ फोन नंबर 9866372438. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे.